बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्वेशंस बैलेंस करने का बहस करेंगे। हम एक इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन हमारे साथ है Mg3n2 प्लस H2O बनाते हैं MgOH होल 2 प्लस NH3। So we have this equation in which Mg3n2 react with water and form MgOH whole 2 so NH3. So we will write this equation as Mg3 dot N2 plus H2 dot O Mg dot OH whole O2 dot H2 as 2 is multiplied by 1 OH, so it becomes O2 dot H2 plus N dot H3। पहले हम मेटल जो है ना वो बैलेंस करेंगे। देख तो हमारे साथ मेटल जो है ना यहाँ नाइट्रोजन है, तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रोजन जो है वो 2 है और राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन 1 है। तो हम इसको 2 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे 2। अब भी नाइट्रोजन बैलेंस हुए तो अब Mg3 हम बैलेंस करेंगे। दिस 2 विल बी रिटन विद H as a coefficient with H3. Now as we balanced nitrogen, now we are going to balance Mg3. So we have 3 atoms of Mg on the left hand side and 1 atom of Mg on the right hand side. So we will multiply it by 3. So it will become 3Mg. This will also become 3Mg. We will also multiply it as MgO2 H ये कंबाइन है ना, इसलिए हम इसके साथ भी 3 लगाएंगे और इसके साथ भी 3 आएंगे। We will multiply it by 3. Also we will multiply it O2 by 3 and also multiplied H2 by 3. So now Mg is balanced on both the sides. Now we come to oxygen. As we have 6 oxygen on this side and 1 on the left hand side, so we will multiply it by 6. So it will become 6 oxygen on this side and 6 on this side. So we will also multiply it by 6 as it is the same formula, one formula. So we will also write 6 as a coefficient with O. Now oxygen is also balanced. Now we come to the hydrogen. So we have 12 hydrogens on the left hand side and 6 and 6 12. So we have 12 hydrogens on the left hand side too. Equation is balanced. So we will write as 1 as a coefficient here. Here both are counted as 1. So 6 and 6, we will write 6 as a coefficient before H2O. Now we come to Mg is
they are counted 1, 3, as it is one formula. So we will write 3 as a coefficient before mg. So it will become 3 mg. Now, as it is 2 NH2, so we will write, this is considered as 1, 2 in 2H. So we will write 2 as a coefficient before NH3. So now the equation is balanced. We are checking it again. Mg3 here 3 है, and on this side Mg is also 3. Now nitrogen, we have 2 nitrogen on the left hand side and 2 nitrogen on the right hand side. So nitrogen is also balanced. Now we come to oxygen. We have 6 oxygen on this side. So here we have written as a 6 as a coefficient before H2O. On this side we have 6 oxygen 2. So right hand side we have 6 oxygen. So oxygen is also balanced. Now we come to hydrogen. There are 12 hydrogen on the left hand side and 6 and 6, 12 hydrogen on the right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Now the equation is balanced. So the balanced chemical equation is written now as Mg3 N2 plus 6 H2O, which will form 3 MgOH whole 2 plus 2 NH3. So the equation is balanced on both sides. अच्छा, एक बार इसको उर्दू में भी पढ़ाएंगे। हमारे साथ इक्वेशन जो है ना Mg3N2 है, जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वो बनाते हैं MgOH whole 2 and NH3. So now we will write Mg3.N2 plus H2.O. Mg.O2.H2 as MgOH2 whole 2, as 2 is multiplied to 1. Also hydrogen has 1 coefficient, it is multiplied to 2. So we have O2 H2 plus 2N dot 2H3. अब हम इसका कोएफिशिएंट 1 है दोनों का, तो हम इधर 1 लगाइए, 1 तो नहीं लिखा जाता है। अब आते हैं H2O की तरफ, इधर दोनों का कोएफिशिएंट 6 है H2O का, तो ये 6 हुआ। अब आती है इस मैग्नीशियम की तरफ, यहाँ 3 है और ये भी 3 है और ये 3 है, तीनों एक साथ काउंट करते हैं, तो ये 3 होगा। अब आती है यहाँ नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन 2 है इस साइड पे और इस साइड पे भी 2 हैं, तो ये 2 एज ए कोएफिशिएंट लिखा जाता है। अभी बैलेंस इक्वेशन जो है वो हमारे साथ है, वो Mg3N2 प्लस 6H2O 3MgOH होल 2 प्लस 2NH3, तो ये मिलकर रिएक्शन करती है और ये जो है ना इसका प्रोडक्ट है, ये बनाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो बनाती है MgOH होल 2, तो इसको इस तरह लिखेंगे Mg.O2.H2 प्लस N.H3। तो सबसे पहले हम मेटल जो है ना वो नाइट्रोजन है और वो हम बैलेंस करेंगे। तो इस साइड पे नाइट्रोजन जो है 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो वी विल आल्सो राइट दिस, हम ये दो जो है ना H3 के साथ भी लिखेंगे। अच्छा, अभी नाइट्रोजन जो है ना वो बैलेंस हुआ। अब हम आते हैं Mg की तरफ। इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे साथ Mg एक है और लेफ्ट हैंड साइड पर Mg जो है ना 3 है, तो हम इसको 3 से ज़रब देंगे, तो इसके साथ भी 3 से ज़रब देंगे। अच्छा, अब वो Mg भी बैलेंस हुआ। अब आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ 1 है इस साइड पे और इस साइड पे 6 है, तो हम 6 से ज़रब देंगे, तो 6 एज ए कोएफिशिएंट लिखा जाएगा बिफोर H2O। अच्छा, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। अब हाइड्रोजन की तरफ आती है। हमारे साथ हाइड्रोजन जो है 12 है इस साइड पे और इस साइड पे 2 3 6 और 3 2 3 6 12 इस साइड पे हुई। तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरह लिखेंगे। अब भी ये दोनों एक काउंट हो जाती है, तो इसका कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, इस तरह ये लिखा गया। इसको भी 1 काउंट हो जाता है, H2A, तो 6 दोनों की आगे लगाएंगे, इससे 1 लेंगे। अब भी हम आती है MgOH2 की तरफ, तो ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों 1 काउंट हो जाते हैं, तो इसकी Mg के आगे कोएफिशिएंट 3 लगाएंगे। अब आती है ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ 6 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी ये 2 इसके साथ भी है, 2 3 6 हैं, तो ये भी बराबर हुई 3 MgOH2। अब हाइड्रोजन की तरफ आती है। यहाँ हाइड्रोजन है 6 2 12 12 और इस तरफ भी ये 2 3 6 हाइड्रोजन ये है प्लस 6 2 3 6 ये हैं, तो ये भी 12 हुआ। तो अब इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो हमारे साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है Mg3N2 प्लस 6H2O वो बनाती है 3 MgOH2 प्लस 2 NH3।